Shall I ask you a question in English language? Yes, sure. You would respond properly. जिन्ना में तो हो सकता है. देखो अंग्रेजां दी भाषा बोलने दी तुहानू लोड़ नहीं. चलो 4 लाइनां Good example. कश्मीरी च के बोल के दसी ओड़ो. पेशवार अगला सवाल दे क्या शूज करन मित्रों तुस मिगी प्यार मेरी डोगरी बोलने दा बड़ा चाह है हाँ, बोलो। ते मेरी बेइज्जती भी बड़ी होई ते सब तो ज्यादा मैडम करदी ही. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਵਾਨ ਹੈ ਭਈ ਵਕੀਲ ਕੰਦਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਰੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ठीक है ते ਇਹ जनता ਪੂਰੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀ ਔਰ ਬੋਲ ਫਟਫਟ ਮਕਾ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾ ਮੁਰਗੀ ਭੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਾਈ ਲੈ खा लो सर. ਕੀ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰੀ ਕਰਲਾ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਸਮਝਦਾ ਮੁਫਤ ਨਰਾਤਰੇ तो ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ Thank you very much. इधर सर कुछ ਮੁਕਲਾ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ये सारे तो मुंह मीठा कराओ मैं ना. अपना मुंह मीठा करना है. नहीं नहीं ऐसे ही कराने हैं हमारे. हम कराते हैं अपने बंदों को. ये लो सर. मैं ताई शाना मुर्गी ले आंदी है. ये छोटे छोटे दाने आपका भी ठीक करा रहते. क्या किया वो कोई दुश्मनी है ना. ये क्या हो रहा है इधर से उधर चल रहा है. बड़ी मुबारक है, बड़ी बड़ी मुबारक. कौन किसको खिला रहा है पता ही नहीं चल रहा है. आराम से. ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਸੇ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ TSL ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਤੇ 300K ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ अच्छा मतलब जिन्हें 300K ਦੇ ਹਾਂ जिन्हें इंटरव्यू किए हो सारी पढ़ा से आज कट गई. ਨਾ 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 क्या ਨਾ बोलो सर. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਸੋਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ आज हम सारे वकील एडवोकेट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस विषय में क्योंकि आज TSL ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है. एक 300 के जिसका मतलब 3 लाख YouTube पे पहुँचे हैं और उसके बाद Facebook पे 10 लाख के पास आप पहुँच रहे हैं. और इसी विषय में हम आपको बुके भी हमने आपको प्रेजेंट किया है. सबसे पहले हमारा ये है कि हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने ये कामयाबी हासिल कैसे की और कैसे यहाँ तक पहुँचे. ये मेरा आपसे पहला सवाल है. ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵਕਲਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨੇ ਅਸਿੰਗੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਇਥਾਣੀ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਅਸ ਪੁੱਜਣੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੌਲੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ 10 ਲੱਖ ਪੁੱਜੀ ਜਾਣਾ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਅਸ ਪੁੱਜੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਤੌਲੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਣਨੇ ਦੀ ਅਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹਵਾ 'ਚ ਅਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਸੇ ਅਸ ਦਿਖਣੇ ਆ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋ ਅਸ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਸ ਦਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਾ ਔਰ ਸੱਚੀ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇ जिस चाली का अजे तक बनता रहा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों ने शुरू से हमें सपोर्ट किया है और शुरू के वो 10,000 फॉलोअर्स 10,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो गैदर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तब हम नए नए थे, तब हमें कोई पहचानता नहीं था। तब जो लोगों ने हमारा साथ दिया है उनका तो और ज़्यादा आभारी हूँ, और साथ ही में उसके बाद से जो है वो लोग जुड़ते गए।
तो हालांकि बीच में बड़ी सारी परेशानियां भी आई। जब इंटरनेट बंद हो गया वो सबसे बड़ी परेशानी थी, फिर उसके बाद कोविड आ गया, वो दूसरी बड़ी परेशानी थी, क्योंकि हम जहाँ तक स्टोरीज करने के लिए जाते थे तो गांव-गांव में जाना, घूमते फिरते स्टोरीज करनी। कोविड आ गया तो सब कुछ बंद हो गया। उसके बावजूद भी लोगों ने इतना प्यार दिया, अभी तक जो है कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, सपोर्ट करते हैं। और 3 लाख फॉलोअर्स हों, 4 लाख फॉलोअर्स हों, फॉलोअर्स जो हैं वो तो खाली यूट्यूब तक सीमित होते हैं, लेकिन लोगों का जो प्यार मिलता है कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो वो तो एक्सट्रीम है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਲੇ 2 ਹੀ ਸਾਲ ਮਸਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖੇ ਮੈਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਗਰ ਸਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ TSL 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ 3 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ YouTube ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 300 ਲੱਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਬਿਲकुल। बहुत बहुत मुबारक, ऐसी विशेष बंदराल साहब हुन ਤੁਹਾਡੀ वारी है। सर मेरा सवाल आप तीनों से ही है। आप हमें ये बताइए कि आपने तो खैर ढेर सारे इंटरव्यू लिए होंगे, अलग अलग पार्टीज़ में जाके अलग अलग अहदेदार लोगों के साथ आपका बैठना हुआ होगा, उनसे सवालात किए होंगे। अब मेरा कैटेगरीली और स्पेसिफिकली ये सवाल है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने अपने तौर पर सबसे ज़्यादा इंटरव्यू लेने का मज़ा जो आपने इंजॉय किया और आपको अच्छा लगा वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस, बीजेपी, पार्टी। हाँ, या फिर आम आदमी पार्टी? देखो ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ हर पार्टी जेह्ड़े भी अस अग्गे जेह्ड़ा जिंदे कन्नै इंटरव्यू करने आ कुसै भी पार्टी दे दिग्गज नेता होन, लेकिन अगर अग्गै वकील न ते उंदे कन्नै थोड़ा रौंह्दा कि ओह् भी कानूनी दाऽ पेच बड़े करदे न। अगर तुस पॉलिटिकल पार्टी दे कुसै लीडर कन्नै जेह्ड़ा लीड करा दा होंदा उंदे नाल गल्ल करो ते केइयें दा ते सिद्धा पद्धरा जवाब होंदा, लेकिन केईं फिर उसी घुमाने फिराने दी गल्ल करदे न। और एक जेह्ड़ा अच्छा जर्नलिस्ट होंदा है, एक ते एह् है भई उन्नै गल्ल कढानी होंदी है उंदे कोला। एह् नहीं है कि अस उनेंगी अस केईं बारी दिक्खने आं कि बड़े दबाव कन्नै बड़े प्रैशर कन्नै तुस सवाल करदे हो, ऐसा नहीं करना। जियां तुस बड़े इयां सुलझे दे तरीके कन्नै सवाल करदे हो, बड़े इयां प्यार कन्नै सवाल करदे हो, और एह् हुनर है एक पत्रकार दा कि उस्सै प्यार कन्नै तुस ऐसियां गल्लां तुस अगले कोला कढाई सकदे हो। जियां कई बारी तुंदे कन्नै गल्ल करना में या कुसै होर कन्नै करना, या कोई दिग्गज नेता होंदे जेह्ड़े कदें हसदे गै नहीं हैन। पत्रकार दा एह् कम्म होना चाहिदा भी ओह् कन्नै हस्सने बी चाहिदे। समझ आ गया। और दूआ एह् है भई पत्रकार दा एह् कम्म होंदा है कि एक ते ओह्दा जिस भी परसनैलिटी कन्नै ओह् इंटरव्यू करन गेदे न, अगर अग्गै कोई वकील है तो उसदे बारे च उनेंगी पूरी जानकारी होनी चाहिदी। अग्गै कोई कुसै पार्टी दा कोई दिग्गज नेता है तो ओह्दे बारे च पूरी जानकारी होनी चाहिदी। अगर कुसै टॉपिक उपर गल्ल करदे हो, कुसै विशे उपर तुस उंदा इंटरव्यू करदे हो तो उस विशे के बारे च तुसेंगी पूरी जानकारी होनी चाहिदी, क्योंकि जिन्ने चिर तुसेंगी जानकारी नहीं होग इन्ने चिर तुस सवाल तो उंदे कन्नै करगे हो पर वो तुसेंगी सही जवाब नहीं देंगन। वो दिक्खी जाङन भई एह् नौ सिक्खिया है, इसी किस स्हाबै नाल जवाब देना। इस वास्ते पत्रकार का भी बड़ा बड़ा रोल बनता है कि जिस वेले भी सवाल पुछना बड़े तरीकेकार कन्नै पुछना। ये ते तुसें गोलमोल जवाब दे दिया, कोई गल नहीं, थोड़े पर बाद चलने, पहले मैडम दा लैने व्यू। इंटरव्यूज तो बहुत सारे किए हैं। मैं कहूँगी कि पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरव्यू करने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा आता है आम लोगों से बात करने का। तो जनता के साथ जो हमारी बातचीत होती है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा हमें उसका है। मुझे याद है कि हम गए थे रामनगर वाली साइड, तो रामनगर वाली साइड हमें 96 वर्षीय एक बुजुर्ग मिले और उनके साथ हमने गपशप लगाई थी उस टाइम पर जब हमारा चैनल अभी नया नया ही था, 2018 की बात है शायद। तो वो कॉन्वर्सेशन मुझे आज भी याद इस वजह से है कि हमारे साथ उन्होंने पहले बातचीत की, अपनी पूरी कहानी सुनाई, फिर और भी बड़ी सारी बातें की।
लेकिन उसके बाद वो पैदल हमारे साथ पूरे इलाके में, पूरे गांव में घूमे, हमें पूरा एक एक जगह दिखाई उन्होंने। और 96 वर्षीय वो बुजुर्ग के साथ जो हमारी बातचीत हुई वो मेरी सबसे फेवरेट है। जनता सुन ले, बीजेपी ऑफिस वाले भी सुन ले, कांग्रेस वाले ही सुन ले, आम आदमी पार्टी सुन रही है। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਲਵੀ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫੀਲਡ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ 10 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ TSL ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਅਕਸਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਾਇਸ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। तो उसके नाल एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम, हालांकि बंदराल साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे, उन्होंने किसी पर्टिकुलर पार्टी वालों ये नहीं कहा, इन्होंने क्वेश्चन ने पूछा किस पोलिटिकल पार्टी का या उनके लीडर महोदयान का इंटरव्यू लैंदे तुहानू मज़ा आंदा, अच्छा लगता, तो इन्होंने अज गोलमोल जवाब दिता है। जेडे उस्ताद ने मिस्टर सैयद जुनैद हाशमी साहब वो अज साडे नाल नहीं बैठे थे क्योंकि वो दिल्ली ने, अदरवाइज अज उन्हां नाल भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने सी ते उन्हां नूं भी बहुत अच्छी बहुत मुबारकबाद है इस सारी टीम नूं। मैं इन्हां दे कोल चंद एक पुरानियां यादां इसे TSL दियां शेयर कराना चाहांगा। सब तो पहले मैं आंचल होरां नूं पुछना चाहांगा कि जगह जगह तुसीं कहंदे हो डोगरी च करां, पंजाबी च करा, हुण मैं इन्हां नूं पुछना चाहना, शैल आई आस्क यू क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज? यस श्योर, यू वुड रिस्पॉन्स प्रॉपरली? जिन्ना में तो हो सकता है। आज आंचल 4-6 लाइना कोई भी इंग्लिश च बोल के अपने ऑडियंस नूं सुनाए ताकि पता चले एजुकेटेड है, अच्छा फ्लुएंस का पता चलता है कि इंटरव्यू जिसले अगले नूं किसी नूं पूछो, क्योंकि साडी एक लैंग्वेज कई मिक्स हो चुकी दी हुंदी है, कुछ विच इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते, कुछ हिंदी दे आ जाते, कुछ पंजाबी, कुछ डोगरी, तो बाद चो ये साडा मौजू लैंदे कि तुहानूं सही डोगरी नहीं आती। अज मैं इहो इन्हां नूं आंचल तो शुरू करते हुए कि कुछ एक 4 लाइन है इंग्लिश लैंग्वेज च बोल के ते दस देना अपने ऑडियंस नूं। ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਡੋਗਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਕਸਰ ਵੱਜਣਾ ਵੱਜਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡੋਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸ਼ੈਲ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਨੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੀ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਲੇ ਰਵਾ ਜੰਮੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇਖੇਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, US 'ਚ। ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। चलो 4 लाइन Good example. कश्मीरी च के बोल के दसी ओड़ो पेशवार है। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਿਆ ਸ਼ੂਸ਼ ਕਰਨ वलसा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਲੈਣਾ? 4 वर्ड बोले। अच्छा जी, मेरा ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। मेरा हूँ अगला सवाल है सागर सर कन्नै। सर सागर सर तुसें डोगरी च बड़े इंटरव्यू ले होने, अज्ज अस चाहने तुस हिंदी च ना पल्लवी मैडम नूं कोई सवाल करो जी मीडिया। मित्रों तुस मिगी प्यार
मैं देखो भाई, इंटरेक्शन हो रही हिंदी च गए देखो भाई जी ऐसा है, हिंदी तो अपन ने ना सुना भाई जी कह रहे हो अपन बोल सकते हैं, हिंदी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य में हमारी शिक्षा हुई थी, इसलिए हिंदी बोलना हमें आता है और बोलनी भी चाहिए। से स्वाद नहीं आता, हिंदी स्वाद नहीं आता हिंदी दा। बेसिकली मजा मिगी आउंदा गै डोगरी च। लोग आखदे न कि रिक्वेस्ट करनी होए ते अंग्रेजी च, स्वागत करना होए ते हिंदी च, ते जे कुसै गी धक्का मारना होए ते पंजाबी च। ते डोगरी किसे खाते डोगरी जेड़ी साड़ी है बड़ी मिठी लैंग्वेज है। खंड मिठे लोग खंड मिठे लोग डोगरे, खंड मिठे लोग डोगरे हैं ते तुसें गी बर्दाश्त करा करदे न। लेकिन मैं सरीन साहब गी दस्सी देआं कि जियां डोगरी बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि डोगरी दा जेड़ा वीड़ा, डोगरी दी जेड़ी मुहिम है शुरू कीती दी है, ओह ते जरूरी है कि अस डोगरी बोलचै। और मैं तुसें गी दस्सां, हिंदुस्तान की कुसै भी स्टेट च जां, मेरे ने पलवी है, केई रियासतें च फिरे न, इनें गी एह पुच्छना कि मैं उत्थे दुकानदारा कन्नै भी गल्ल करूँ ते डोगरी करूँ। रही गल सेन साहब दी, ते ये वकील न, इंदी मजबूरी अंग्रेजी च बोलना, क्योंकि मी पता भी जिस वेले कोर्ट च अंग्रेजी बगैर तो मी लगता कि ये अग्गे भी नहीं जाई सकते। इस वास्ते उनकी मजबूरी है अंग्रेजी बोलना, तो मेरी मजबूरी है कि डोगरी बोलना। इस वास्ते मजबूरी च जेड़ी चीज़ां न वो कई बारी करने पौंदियां। सवाल का जवाब फिर सागर सर खाइए न। बंदराल साहब ने अंग्रेजी की तो गल ही नहीं की। बंदराल साहब ने कहा कि सागर सर हिंदी च एक सवाल पलवी मैम नु करो। पहली गल तो है कि पहली गल ये है बंदराल साहब के अंग्रेजी च मेरा हथ बड़ा तंग है। हिंदी दी गल करा अच्छा, नहीं हिंदी च भी आवा दा। रही गल है डोगरा होई गया, पंजाबी होई गया, कश्मीरी होई गया, जिसलै भी वो हिंदी या अंग्रेजी बोलू इ'यां स्हेई होंदा आखें अपनी अपनी भाषा बोला दा। ठीक है, उन पलवी सरीन जो हैं ये हमारी एडिटर इन चीफ हैं, मैं इनसे यही प्रश्न करूंगा कि सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी रिपोर्टिंग के लिए? सबसे अच्छी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोरीज मिल सकती हैं वो तो कश्मीर है, क्योंकि हम अभी तक कम से कम 4 बार कश्मीर गए हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कोई स्टोरी ना मिली हो। जम्मू में कई बार ऐसे दिन हो जाते हैं जिस दिन आप पूरा दिन घूमते हैं लेकिन कोई स्टोरी नहीं मिलती, लेकिन जितनी बार भी कश्मीर गए हैं 10-12 स्टोरीज दिन की मिल ही जाती हैं। एक कारण उसका ये भी है कि हम कभी कभी जाते हैं तो वहाँ हर एक चीज़ हमारे लिए नहीं होती है। जम्मू में 24 घंटे यहीं पे होते हैं, पूरा महीना यहीं पे होते हैं, तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा स्टोरी तो हम 3-3, 4-4 बार कर लेते हैं जो पहले भी की होती है, क्योंकि असर कोई होना नहीं। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगहें जो रही हैं वो कश्मीर रही हैं। जितनी बार भी गए हैं वहाँ से बड़ा कमाल का काम करके लौटे हैं। आपने पूछना पूछ ले हैं। बड़े सवाल अब नहीं, हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते रहते हैं ना कोर्ट में। कोई गल नहीं। हाँ, अब मैं चाहूंगा कि पलवी मैडम डोगरी में क्वेश्चन करें और सागर साहब उसका हिंदी में जवाब दे दें। मेरी डोगरी बोलने का बड़ा चाह है, हाँ, बोलो। ते मैं तो ये आखना चाहगी कि डोगरी बोल दे इन्ने साल हो गए, मिगी ये दसो कि केड़ा ध्याड़ा हा जिसले तुहें इहो जी फीलिंग आई, इहो जिहा लग्गेआ कि इत्थे मैं डोगरी बोलना ना लोकें गी पसंद नहीं आ दा कि मैं डोगरी बोला ना। देखो जिस वेले तुस अपने हिंदी सर, देखो जिस समय पलवी जी जिस समय आप कहीं दूसरी स्टेट में गए होते हैं ना, क्योंकि अगर हम जम्मू में कहीं भ्रमण कर रहे हैं या कहीं जम्मू में यात्रा कर रहे हैं या कहीं जम्मू में रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप डोगरी बोलोगे तो लोग पसंद भी करते हैं और डोगरी से लोग प्यार भी बहुत करते हैं। पहले मैं समझता था कि डोगरी कम लोग सुनते हैं और कम लोग बोलते हैं, और जब से हम देख रहे हैं, आपने वीडियो देख रहे हैं, जब मिलियंस के ऊपर जाते हैं तो हमें लगता है कि डोगरी को लोग पसंद भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। और जब आप दूसरी स्टेट में जाते हैं या यूपी में चले गए, हरियाणा में चले गए, पंजाब में चले गए, उत्तराखंड में चले गए, वहाँ जब आप डोगरी में किसी के साथ बात करो तो फिर उनको पता ही नहीं चलता कि ये बोल क्या रहे हैं। जैसे दिल्ली में अगर आप डोगरी में बात कर रहे हैं तो कुछ कोई ना कोई समझता है, क्योंकि पंजाबी वहाँ पे ज़्यादा है, हरियाणी भी अब समझ ही लेते हैं। तो जब आप दूसरी जो हिंदी भाषी
हमारे राज्य हैं वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे डोगरी जब आप बोल रहे हैं तो लोगों को पता नहीं चलता, तो नहीं चलता, वो उनकी मजबूरी है, हमने तो डोगरी बोलनी है। अब मैं एक क्वेश्चन आंचल से पूछूंगा कि आपने इतनी देर से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस पत्रकारिता के जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें एक कोई, वैसे तो कई होते हैं, कोई एक बहुत अच्छी इंसिडेंट बताएं अपने लाइफ की और एक कोई बहुत बुरी इंसिडेंट जो आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें वो करें, एक अच्छी और एक बुरी। जर्नलिज्म जवाब इंग्लिश देना है? जिस तरह हिंदी च दियो ते अस बड़े खुश होंगे। पंजाबी च ही देना मैं। अच्छा, जर्नलिज्म तो सब तो पहला जेड़ा वधिया इंसीडेंट मैं दसांगी कि जिस वेले मैं TSL ज्वाइन किया सी, सब तो वधिया मेरा इंसीडेंट, मतलब इंसीडेंट नहीं कहांगी, मेरा मतलब लक ही समझ लो तुसी, या 2 साल के बाद ये मौका मिलिया मैनू कि फाइनली द स्ट्रेट लाइन सीधी लकीर जिन्हों मैं हर वेले वेखदी सी कि, और मैनू लगदा सी कि नहीं मेरा लेवल हले इत्थे है ते मैं कदे उस लेवल तक पुज नहीं सकती, क्योंकि एज कंपेयर टू जम्मू च वेख्या जाए तो नैशनल चैनल के बराबरी च TSL उस वेले चलता पिया सी, अज भी चल रहा है। तो उस वेले मैं जिस वेले ज्वाइन किया मैं सर ने भी कहा सर मेरे लिए हले भी खा भी लग रहा मैनू कि मैं TSL ज्वाइन कर रही हाँ, ईवन कि मैं प्रज्ञा दीदी का सिर खा देता ही उस वेले कि दीदी मैं फाइनली ज्वाइन कर रही हाँ TSL, मैं TSL ज्वाइन कर लिया। तो उस वेले जिस वेले मैं ज्वाइन कर लिया तो 1 हफ्ते बाद भी मैनू होश नहीं आया कि मैं वाकई TSL च काम कर रही हाँ। फिर वो बाद जिस वेले मेरे हत्थ च माइक आया मैनू साह आया कि आहो TSL च मैं काम कर रही हाँ फाइनली। तो मेरा इंसीडेंट नहीं कहांगी, एक लाइफ का बहुत बड़ा मूवमेंट से जिस वेले मैं TSL ज्वाइन किया सी। ते सब तो खराब इंसीडेंट नहीं कहांगी कि एक बुरा ख्वाब भी दसांगी कि जो मैं सोचनी है कि कदे भी इस चैनल तो मैं जाना, मतलब कदे भी मेरी वापसी ना हो इस चैनल तो किसी भी वजह कन्नै, क्योंकि जर्नलिज्म च जिस वेले मैं आई बहुत कुछ सीखन मिलू। बाकी पोर्टल्स तो मैं ये नहीं कहांगी मैनू सीखन तो नहीं मिलिया, बहुत कुछ सीखन मिलिया, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स वधे, पर इधर आके मैनू डांट भी बड़ी पई। मैं सारे दस दियां पहली गल, ठीक है, मेरी बेइज्जती भी बड़ी हुई तो सब तो ज़्यादा आ मैडम करती ही, ये जड़ी बिच बैठी रही चश्मे वाली मैडम, सब तो ज़्यादा बेइज्जती, पर सब तो ज़्यादा जो सिखाए रहा मैनू वो सर ने ते पल्लवी दीदी ने, इन्होंने ही दोनों ने मैनू सिखाया ही। तो मेरा इंसीडेंट नहीं मैं कहांगी, यो कहांगी कि वो दिन कदे नहीं मेरी लाइफ च आना चाहिए जिस वेले मैं उस चैनल को छड्ड के जावां जिस चैनल ने मैनू इन्ना कुछ सिखाया रहा, चाहे वजह कोई भी होए पर्सनल प्रोफैशनल, पर कदे इस तरीके का कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं जिस थाली में तुसीं खादे रहे उस थाली की कदर करनी चाहिए है तुहानूं। जिस थाली ने तुहानूं इन्ना, मतलब जिस चैनल ने तुहानूं इन्ना सिखाया रहा है, तुसीं अपने लिए इन्ना ना करो, बस उस चैनल वास्ते इन्ना कर लो कि उस चैनल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਜਰਨੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ये लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਗਰ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ हर जगह का। मैं तो खास कर TSL वास्ते, क्योंकि अज TSL के 300 के दा असी इंजॉय भी कर रहे हैं, इसे दे वास्ते प्रोग्राम रखा 300 के होने के खातर। TSL च आके तुस भी अपना एक कोई अच्छा एक्सपीरियंस ते एक कोई बैड एक्सपीरियंस अपने दर्शकों नाल शेयर करो। 1988 च मैं पहला प्रोग्राम रेडियो कश्मीर जम्मू दिता, मतलब मैं पढ़दा मैं पैदा भी नहीं हुई थी सर तब। हाँ ते अगू तुस हिसाब लाई लो भी इस फील्ड च मेरा किन्ना मैं इस फील्ड च पैंडा तय किया। उसके बाद कभी कुछ सोचा नहीं अज दिया दिन भी तुहानू देखना पौना? नहीं बिल्कुल बड़ा अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत। 3 वकील एक बंदे दा इंटरव्यू लेन, देखो वकील एक भी चंगा नहीं होंदा, एक भी एक भी चंगा नहीं होंदा, ते ये भी एक खुआन है भाई वकील कंधा लिखे दा मान नहीं होंदा। 3 साक्षात मेरे कोल बैठे दे न और इन्ना टाइम वकील नहीं दिंदे की कहते 5 मिनट लगी जान तो फिर समझो पैसे जेह्ड़े तुसें घर आंदे दे न वो बोझा खाली होई गया। तो दिख लो अद्धा घंटा जाए इन्हें सारे कन्नै गलबात करदे ते कोई गल नहीं, अज आस इंदे हेठां कल इन्हें भी कैसा चढ़ी जाना सारा, और फिर तुसीं उस वेले भी तुसें दिखना। सवाल ये है
ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ TSL ਦੀ पैड़ा में तुसें दिला दा में तुसें दस्सां इत्थै अजे तक पैड़ा कोई मेरे कन्नै ऐसा होया नहीं है जेल्लै होग ते ओह् बी मैं तुसें दस्सी दूं TSL च नहीं ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ- TSL ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ मैं ਨਾ ਕੀਤੀ मैं ਹੋਵੇ। तुसें दस्सां कि मैं इन्ने चिर होया इस फील्ड च ज़्यादातर लोग मिगी पहले जम्मू जेह्ड़ा डुग्गर प्रदेश है जम्मू खित्ते दी कोई ऐसी जगह नहीं है जित्थै मिगी नहीं जानदे कि मैं 22-23 साल कश्मीर टाइम्स च कम्म कीता और उत्थै मैं डोगरी दा एडिटर आ उस कारण भी जिन्ने भी मन्ने तरमन्ने दे लोग न कुसै भी जिले दे कुसै भी डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर दे तहसील हैडकुआटर दे तकरीबन वाकफ है ओह्दे बाद रेडियो कन्नै में वास्ता रेहा रेडियो च भी मेरे जेह्ड़ा प्रोग्राम न ओह् चलदे रौंह्दे न उत्थै मैं कंपेयरिंग करना उस दे कारण भी काफ़ी लोकें कन्नै मेरा रेहा मिगी प्रॉब्लम इस वास्ते नहीं आउंदी कि जेह्ड़े मेरी उमरी दे जां मेरे कोला बड्डे लोग न ओह् मिगी पैह्ले जानदे लेकिन जेह्ड़ी नवीं जनरेशन है TSL च औने कारण हून ओह् जानदी है हून मैं जित्थै भी पैह्ले ते एह् हा भाई जेल्लै रेडियो च मैं करना कम्म उत्थै लोग आवाज़ उप्परा मैं तुसेंगी दस्सां केईं जगह मैं जन्ना केईं लोग आवाज़ उप्परा पछानी लैंदे हे की के आखदे तुस कम्म केह् करदे हो मैं कहा जी मैं कक्ख नहीं करदा की जिस वेले मैं डोगरी बोलना ओह् मिगी पछानी लैंदे दूरदर्शन च जेल्लै मैं कम्म कृषि दर्शन जां साड़ी धरती जां साढ़े लोक जां किश होर प्रोग्राम होंदे जन चेतना ज्ञानवर्धक जेह्ड़े जागरूक करने आह्ले प्रोग्राम उत्थे दिखदे मिगी फिर उत्थै उ'नें पछानना शुरू करी ओड़ेआ लेकिन हून जेह्ड़ी नमें लोक न नवीं जनरेशन जेह्ड़ी है हून TSL च औने दे कारण ओह् पछानी लैंदे और यकीन करेओ मैं हून ते ओह् मास्क नहीं लाए दा मैं मास्क होंदा लाए दा हून मैं केह् करना भाई हून अजकल मैं पैदल टुरा दा ते जिद्धर भी जन्ना पैह्ले बारी जेल्लै मैं लंघना ते ओह् दिखदे न पछानदे न ओह् बाद च उ'नेंगी चेता औंदा नहीं एह् बंदे गी दिक्खे दा जेल्लै दूए दिन मैं उद्धर लंघना पकड़ लैंदे मारे 2 मिंट आओ स्हेई तुस फलाने हो एह् होंदा भाई खट्टे मिट्ठे जेह्ड़े तजर्बे न ओह् होंदे गै रौंह्दे न केईं जगह केईं ऐसी गल्लां भी होंदियां न जित्थै बंदे गी मन भी कौड़ा होंदा लेकिन एह् रूटीन है एह् चलदा रौंह्दा कि समाज बिच तुसेंगी हर किस्म दे लोक लब्भने न चंगे भी लब्भने न माड़े भी लग्गने न लेकिन तुसें सारे कन्नै चंगा करना ते फिर तुसेंगी सारे गै चंगे लग्गन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो यही था कि जब हमने शुरू किया था स्ट्रेट लाइन मैंने सर ने तो उस टाइम पर हमारे पास अब लोग या जर्नलिस्ट तो कोई थे नहीं क्योंकि नया नया चैनल शुरू हुआ था तो उस टाइम पे जितने भी हमारी कॉलेज के दोस्त थे और अभी भी अगर आप स्ट्रेट लाइन के यूट्यूब पे फेसबुक पे जाकर सबसे पुरानी वीडियो सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि वो ओरिजिनल टीम जो हमारी थी कि उसमें हमारे साथ प्रज्ञा सबसे पहले उसने ज्वाइन किया था इमीडिएटली एक कॉल किया कि भाई इस तरीके से हम चैनल शुरू कर रहे हैं आओगे हमारे साथ तो 2 मिनट में रेडी होगी कि मैं आई और डोगरी में शुरू करना था तो उससे हमने पहले यही पूछा था कि भाई डोगरी में करना है जर्नलिज्म कर लेगी तो उससे पूछा था भाई बोलना होगा इंट्रोड्यूस करना होगा खुद को कि मैं प्रज्ञा श्रोता स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत करती हूँ तो कैसे बोलोगी तो उसने फ़ोन पर उसी टाइम पे सुनाया बाद में तो मता मता मल्हार उसका बहुत फेमस हो गया था उसके अलावा श्वेता है उसने खुद कॉल करके बोला कि भाई ऐसा कैसे होगा कि आप टीम शुरू करोगे और मैं नहीं आऊँगी वो भी फिर साथ में आ गई और पूरी टीम में उसके बाद पल्लवी कुमारी आई तवलीन कौर आई बहुत सारे और लोग थे जो उसके बाद आते गए तो वो सबसे अच्छा मूवमेंट ये था कि जिस टाइम पे हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं थी हमारा कोई रेपुटेशन नहीं था हमारा कोई नाम नहीं था हमें कोई जानता नहीं था हमने अभी शुरुआत ही की थी उस टाइम पे भी इतने सारे लोग साथ आए सपोर्ट किया 1 साल तक हमारे साथ काम किया और वो 1 साल भी जो है इतना काम किया कि उसी के बाद से जो है लोगों ने हमें जानना शुरू किया एक टाइम तो वो भी आया जब ये लोग ये कहते थे कि ये जो स्ट्रेट लाइन चैनल ये डोगरी चैनल है तो वो तो सारा क्रेडिट उसका जो है वो शुरुआत में प्रज्ञा का ही जाता कि उसने इस बात का कॉन्फिडेंस रखा कि जिस टाइम पे लोग नहीं भी देख रहे थे स्ट्रेट लाइन पर अगर डोगरी वीडियोस नहीं भी देखते थे तब भी अगर उसको बोलते थे कि हिंदी नहीं करना है डोगरी ही करना है तो शी वाज लाइक कि हाँ डोगरी ही करना है वो सारे मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मूवमेंट्स रहे एंड बुरे मूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो बुरे मूवमेंट्स वही रहते हैं कि भाई धीरे धीरे हम ग्रो करते रहे जब हम ग्रो करते रहे तो लोग दूर चले जाते रहे किसी की शादी होगी तो वो दूर चला गया जलंधर बैठे हुए हैं अभी एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ ही लेकिन दूर चले गए तो उसका रिग्रेट तो होता है कि जहाँ पर आप माइलस्टोन्स कोई भी अचीव करते हो सेलिब्रेट करते हो तो वो लोग मिसिंग होते हैं वहाँ से तो उसी तरीके से बाद में और भी कुछ लोगों ने स्ट्रेट लाइन को छोड़ा अपने अपने कारणों की वजह से छोड़ा तो उस वही बुरे मूवमेंट्स है कि जो लोग आए वो अच्छे थे जब चले गए तो बुरे मूवमेंट्स वही बन गए खैर मौका मिलेगा ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते बार बार तो मिलते नहीं है
लेकिन पैक मैं करके जानता बाहर हूँ निकलना है। मैं जानता हूँ हम तो चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये 300 के 3000 के तक भी पहुंचेगा। कोई ना कोई हम ऐसा मौका बना लेंगे। और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ऐसा कोई एक मौका आएगा तो हम किसी प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आम जनता के भी, समझदार जनता के, उनके सवाल भी लेंगे और उनके पब्लिक व्यू में लाइव टेलीकास्ट होते होते इनके व्यूज भी लेंगे। इससे और हमारे वकला साहिबान सभी के इन्होंने बहुत अच्छे इंटरव्यू किए, खट्टी मीठी यादें हैं हमारे सभी की तरफ से। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ये क्वेश्चन पूछ रही हैं, पहले मैं इनका क्वेश्चन का जवाब दे दूं, उसके बाद अपनी मुझे बताएं कि लोग हमेशा बड़ा ये जानते और पॉइंट आउट भी करते हैं कि भाई आप क्योंकि आम आदमी पार्टी में हैं तो कहीं स्ट्रेट लाइन का कोई आम आदमी पार्टी के साथ कोई एक्स्ट्रा जुड़ाव तो नहीं है, कोई इंक्लाइनेशन तो नहीं है। तो मुझे ये बताएं, आज जो ये 300 के की सेलिब्रेशन करने के लिए आप आए हैं, आप मेरी डैडी के तौर पे आए हैं या आप आम आदमी पार्टी के लीडर के तौर पे आए हैं? ना मैं इसके फादर की हैसियत से आया हूं, ना मैं आम आदमी पार्टी के लीडर की हैसियत से आया हूं। आज ऑफिस में बैठे हुए थे, चैम्बर में बैठे हुए थे, मेरे दोस्त भी बैठे हुए थे। नेचुरली जब स्ट्रेट लाइन का एक इंटरव्यू देखने लगे, हालांकि 300 के मेरे को यहां आके पता चला है 1-2 दिन पहले का हो चुका है। नजर पड़ी, बंदराल साहब थे साथ में, भट्टी साहब थे। हमने कहा कि रोज ये हमारा इंटरव्यू करते हैं, आज एक हमारे पास मौका है, एक तो इनको बुके दे के सम्मानित भी किया जाए, इनका मुंह मीठा कराया जाए, इनके साथ लंच किया जाए और साथ में अपने गुड विशेस भी दी जाए। इस इंटरव्यू का किसी पॉलिटिकल पार्टी या पर्सनल रिलेशंस के साथ नहीं है और ना ही कोई हम उसके साथ इसको जोड़ना चाहते। आज का दिन इनकी सेलिब्रेशन का दिन है और मैं तो चाहूंगा, ऊपर वाले से स्पेशल प्रार्थना करूंगा, माता रानी की चुनरी भेंट की है, भोले शंकर का त्रिशूल दिया है कि इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिले और जल्द से जल्द वो मौका है कि ये भी याद करें और हमें बुलाएं कि आज भी हमें गुड विशेस। वैसे तो ऐसा मौका मैं इनको दूंगा नहीं, हम पहले इनके पहुंच जाएंगे और इनके साथ प्रोग्राम सेट करके पब्लिक में आएंगे। हम सब की तरफ से इनको बेस्ट विशेस है। मैं बंदराल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भट्टी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तरफ से भी बेस्ट विशेस इन टीम को दें। आप सबको मेरी तरफ से मुबारक है, आप अच्छी तरक्की करें लाइफ में, मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आपने जो इतना अच्छा ये माइलस्टोन अचीव किया है इसके लिए। और वैसे एक बात की लगा कैसा आपको कि आज आपका इंटरव्यू हो गया? साढ़े कैमरे वाली भैन जी है ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ। ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਧਰੋਂ ਆਂਦੇ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਔਰ ਬੋਲ ਫਟਫਟ ਮਕਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਾ ਮੁਰਗੀ ਭੇਜ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੱਖੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਾਗਿਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ टोपी फिरी ही ना, ये नागिन भी है। और साथ में ये भी मेंशन करना चाहूंगी, बड़े सारे लोग ये कहते हैं ना कि भाई इनका कोई आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा जुड़ाव है या कुछ है, इंक्लाइनेशन हो गई, कुछ होगी। सागर सर से मैं इंडिविजुअल ओपिनियन लेना चाहूंगी, बड़ा ऑनेस्ट और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होगा। सागर से मुझे बताना कि जिस टाइम पे हम आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर का कोई इंटरव्यू करते हैं या मैं ही कर रही हूँ, कोई लेवरेज देते हैं, कोई कसर बाकी रखते हैं? मेरे वीडियो तुसें दिखेगा होने ने, मेरे जेह्ड़े में इंटरव्यू सरीन साहब कन्नै कीते दे जां बंदराल साहब कन्नै कीते दे, भट्टी साहब ने कीते दे, जां होर जेह्ड़े सारे आम आदमी पार्टी दे वकला साथी न उंदे कन्नै तुसें मेरे इंटरव्यू दिक्खे होने न। और सारे ही आखदे भई तेरी जिद्द केह् है आम आदमी पार्टी कन्नै। हालांकि कि सरीन साहब मेरे बड़े पुराने मित्र न, मेरे साथी न, और इंटरव्यू ज़्यादा में इंदे करना। और तुसें पता भई जेह्ड़े में इंटरव्यू उंदे कन्नै करना, इस वास्ते ठीक है दोस्ती अपनी जगह हर बंदे दी होंदी है,
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜੇ- ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕन्नै भी गलबात जिस वेला होंदी है जिस वेला तुसें माइक पकड़े दा, दोस्ती अपनी जगह, ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, पत्रकारता अपनी जगह। कई सवाल जेड़े न, अगर ये नहीं है कि तुस कुसै भी पार्टी का कोई नेता ते तुस उसी क्रिटिसाइज गै करो ना, अगर वो अच्छा काम करा देन उनकी अच्छाई गी सामने आना सारा फर्ज है। साढ़े आपू बिच मतभेद हो सकते हैं कुसै भी पार्टी कन्नै जां कुसै नेता कन्नै, लेकिन जिस वेले तुसें माइक पकड़ी दी है उस वेले वो मतभेद जेड़े तुंदे न वो एक बक्खी होने चाहिए। तुसें एज ए पत्रकार गल करनी है, उत्थे चाहे सरेन साहब होन या कोई होर नेता होवे, पत्रकार है, उन्हें कदे अपने पेशे च भेदभाव या कोई अपनी जाति रंजिश कदे नहीं कड्ढनी, उसी का लोग अच्छा पत्रकार आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चाहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया करें हम उन सभी लोगों का जिन्होंने ये पूरी वीडियो देखी है। कोई 35 मिनट की होगी ਨਹੀਂ 39 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई बात नहीं, एडिट करके 35 मिनट की हो जाएगी। चलो मुर्गी खाई ले खा लो सर। की के भी बेचारी करला दी मुर्गी है ना कि को नहीं ले हुआ करने समझता मुफ्त में रात्रे तो महाराज। कैमरे वाली बहन जी बंद कीजिए ताकि समाप्त करें यहीं पे। वो भी शाना मुर्गी